تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر سے بس اڈے ختم نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سینٹرل سے تفصیلات مانگ لی۔ الکرم اسکوائر لیاقت آباد میں غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کیس۔ درخواست گزار نے اڈے پر موجود گاڑیوں کی تازہ تصاویر بھی عدالت میں پیش کر دی۔ ایس پی نے عدالت کو بتایا خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہیں، 100 سے زائد چالان کاٹ چکے۔ جسٹس عدنان چودھری نے ریمارکس دیے، چالان کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں۔ بسیں نہ روکنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم، 28 اکتوبر کو رپورٹ طلب۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ شہر قائد کی شاہراہیں اور گلیوں کے مرمتی کاموں کو تیز کیا جائے۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے چیئرمین کماڑی ٹاؤن ہمایوں خان نے ملاقات کی، جس میں سیاسی امور اور کراچی میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہر قائد کی خوبصورتی کی بحالی اور عوامی سہولیات کی فراہمی ہی چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن ہے۔ شہر قائد کی شاہراہیں اور گلیوں کے مرمتی کاموں کو تیز کیا جائے گا۔ شہر قائد کو سنوارنے میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ شہر قائد پاکستان کا اکنامک ہب ہے، پورے ملک سے لاکھوں لوگ روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں۔ سید ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ ایف پی آر کے ریجنل ٹیکس آفس 1 نے پوائنٹ آف سیل قوانین کی خلاف ورزی پر ڈیفنس میں واقع گفٹ شاپ کی 2 برانچز سیل کر دی۔ ترجمان کے مطابق ایف پی آر کے انفورسمنٹ اسکواڈ نے کارروائی کے دوران سیلز ٹیکس قوانین کے تحت غیر تصدیق شدہ رسیدیں جاری کرنے پر گفٹ شاپ کے خلاف ایکشن لیا۔ پی او ایس سسٹم کے تحت دکانداروں کو ایف پی آر سے منسلک نظام کے ذریعے تصدیق شدہ رسیدیں جاری کرنا لازمی ہے، جس کے خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فیلڈ آپریشن کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر سرمد شہباز اور نتاشا شافی نے کی۔ قانون کے مطابق دونوں برانچز کو سیل کر دیا گیا۔ چیف کمشنر آر ٹی او 1 قاضی حفیظ الرحمان نے کہا کہ پی او ایس قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن جاری۔ ایس پی سی اے کی جانب سے 6 اضلاع میں خلاف نقشہ جات تعمیر۔ ڈائریکٹر ڈیمولیشن سجاد خان کہتے ہیں کہ لیاری کے حوالے سے تیار کی گئی فہرست پر کام جاری ہے، مخدوش عمارتوں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ ورک آرڈر جاری کر کے انہیں ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے مسمار کیا جائے گا۔ لیاری صبح ہم نے 2 اسکواڈ ساؤتھ کے اندر مزید نئی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جو بلڈنگیں بیسکلی وہ خالی ہیں، ان کو آج سیل کر دیا جائے گا اور ان کے ورک آرڈر بھی ایشو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسٹ کے اندر ڈیمولیشن ہے، ناظم آباد کے اندر ہم نے لیاقت آباد میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، گلبرگ میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور لیاقت آباد لالو کھیت میں اور ناظم آباد میں، ان 3 جگہوں پہ کام کر رہی ہے۔ ٹوٹل آج ہمارے 6 اسکواڈ نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم شام تک جو بھی ہمارے ٹارگٹ ہیں ڈیمولیشن کے، جو فلورز ہیں انلیگل اناتھرائز فلور ہیں جو بھی ہے، اور لیاری کے حوالے سے جو ڈینجرس بلڈنگ ہیں ان کے اوپر بھی کام اسٹارٹ ہو جائے گا۔ بیسکلی ہمارا کام چل رہا ہے اور ان کو سیل کرنے کے بعد ان کو ہمیں ڈینجرس بلڈنگ والے ان کو ورک آرڈر دے دیے ہیں اور کچھ کو دینے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام تیزی سے جاری ہے اور اسپیڈ سے کام کریں گے۔ کورنگی کریک میں پاکستان کے پہلے مینگرووز بائیو ڈائیورسٹی پارک کا افتتاح ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ یہ پارک نہ صرف پاکستان کا پہلا مینگرووز بائیو ڈائیورسٹی پارک بلکہ یہ پانی کے اوپر تیرنے والا ملک کا پہلا پارک بھی ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ شجرکاری کو فروغ دینے کا مشن، جی ایل اے میئر نے کورنگی کریک میں پاکستان کے پہلے مینگرووز بائیو ڈائیورسٹی پارک کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، پارک کا قیام مینگرووز کے تحفظ اور عوامی آگاہی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے زمینوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کی دلچسپی خوش آئند ہے۔ People in the property industry are not interested in the aspect of environment, and I think this is a great example that TPL Properties has put forward for every single developer in the city, in the province, in the country, that yes, the state and the private sector can work together and create success stories for our future generations. میئر نے اپوزیشن جماعتوں پر بھی لفظی گولہ باری کی اور کہا کہ اپوزیشن اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اچھل کود کر رہی ہے۔ اب جو اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے میں ایکسپیکٹ قطعی طور پر نہیں کرتا کہ وہ ہماری تعریف کریں گے، کیونکہ وہ اپوزیشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بابو بھائی نے پریس کانفرنس کی تھی میرے خلاف، ہاں اچھل کے کہہ رہے تھے ان کو ڈائس تھوڑا چھوٹا دیا کریں، اچھل کے کہہ رہے تھے وہ کہ میئر کام رکوا دیتا ہے۔ بھائی میں کام کیوں نہ رکواؤں کہ 2017 میں کام سٹارٹ کرتے ہیں، 2025 میں کھڑے ہیں، کام آج تک ختم نہیں کیا، اتنے نکمے نااہل ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔
मेयर कराची ने PND के वजीर को तजवीज़ दी कि वो वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करें ताकि तरक्याती कामों में रुकावटें दूर की जा सकें। जब तक कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आएंगे, खींचातानी जारी रहेगी और शहर तरक्की नहीं कर सकेगा। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध पाकिस्तान की चीन जैसी तरक्की के लिए पुरुमीद। कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। ताजिरों और सनतकारों के लिए जल्द खुशखबरियाँ आएंगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध का दौरा चीन कामयाब करार। कामरान खान टेसोरी कहते हैं पाकिस्तान भी चीन जैसी तरक्की कर सकता है। वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका में फील्ड मार्शल की मौजूदगी खुश आइंद। मेहनत रंग ला रही है, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की कराची प्रेस क्लब में MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और एडवोकेट अहमद अली गबोल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मेरा हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। चीन के अवाम पाकिस्तानियों को आयरन ब्रादर समझते हैं। जो लगन उस कौम की मैंने देखी वो काबिल तहसीन है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान भी चाइना की तरह तरक्की कर सकता है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट और लोग पाकिस्तानियों को आयरन ब्रदर कहते हैं और अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के ये लफ्ज हमारे लिए चुना होगा। गवर्नर सिंध बोले। अहमद अली गबोल ने गवर्नर हाउस में फलाही कामों को देखते हुए सिंध हाई कोर्ट में दायर पिटीशन वापस ले ली है। यकीन दहानी कराई गई है कि गवर्नर हाउस में कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। मैं ये समझता हूं कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने उन बातों को समझा और मुझे इन्होंने खुद कहा, आप पूछ भी सकते हैं, अभी बात भी करेंगे, इन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है और फिर इन्होंने ये कहा कि मैं सुबह जाकर इस पिटीशन को विड्रॉ कर रहा हूं। तो ये सामने बैठे हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने इनसे कहा कि देखें मेरी तरफ से आप पर कोई प्रेशर या कोई बात नहीं है, आपका दिल मुतमईन है, ज़मीर मुतमईन है, तो आप ये काम कीजिएगा। इस मौके पर एडवोकेट अहमद अली गबोल का कहना था कि गवर्नरशिप एक आईनी ओहदा है जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। और जिस तरह गवर्नर हाउस में इस तरह काम हो रहा है, इस तरह हम इनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप और कुछ करें ना करें, मगर आपके जो वसाइल हैं आप ख़ास तौर पर कश्मीर कंदकोट के कच्चे पर ये वसाइल अपने लगाएं। जो इस टाइम जो हालत वाना और वजीरिस्तान वाली कच्चे की बनी हुई है, मेहरबानी करके आप इसमें अपने वसाइल लगाएं, आप इसमें पोटेंशियल लगाएं। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान को हर महाज पर इज्जत मिली है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में मुल्क को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मौजूद हैं। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मरकजी मुस्लिम लीग ने आओ कराची संभाले मुहिम का ऐलान कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, अद्वियात, सोलर पैनल्स और पंखे भी फराहम किए जा रहे हैं। सूबाई सदर फैसल नदीम का कहना है कि खैमा बस्तियों में रोजाना की बुनियाद पर खाना पहुंचाया जा रहा है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। सैलाब मुतासिरीन की खिदमत और सियासी मुहिम साथ साथ मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची की तामीर और तरक्की के लिए भी मुहिम का ऐलान कर दिया। मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर फैसल नदीम की सैलाब मुतासिरीन के कैंप में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क भर में सैलाब मुतासिरीन की मदद जारी है। खैमा बस्तियों में खाना और दीगर जरूरी अशिया पहुँचाई जा रही है। पंजाब की सूरत हाल तो बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी अगर 24-25 जिले आपके मुतासिर हो जाते हैं कि जो पूरी तरह से आबाद हैं, आपकी ज़राअत का बहुत बड़ा इस हवाले से नुकसान होता है, आबादियों का नुकसान होता है, लोगों के घरों का नुकसान होता है। तो इस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि बहैसियत कौम हम बहुत मुतहरिक और फ़ाल हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि 15 अगस्त को जब से ये सैलाब आया है तो उस वक्त से लेकर हमारे भाई, हमारी जमात, हमारा शोबा खिदमत मुतहरिक और फ़ाल है और बुनेर में, सवात में, गिलगित में और फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ पूरी तरह से जारी है। कराची के सदर अहमद नदीम ऐवान ने बताया कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए आओ कराची संभालें
मुहिम का आगाज किया जा रहा है। कराची की आवाज़ बनना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया है कि आओ संभालें कराची जो मुहिम है, हम इसको आगाज़ करने जा रहे हैं। औरंगी तक औरंगी हम एक हुकूक कराची मार्च वो शुरू करेंगे। तमाम कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पर बिठाएंगे। खिदमत खल्क के इंचार्ज इंजीनियर खिजर बोले कि खेमा बस्तियों में जान बचाने वाली अद्वियात और फर्स्ट एड की सहूलत फराहम कर रहे हैं। हमने उन्हीं खेमा बस्तियों को मॉडर्न खेमा बस्ती बनाया है, जिसके अंदर हमारी डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं, वहाँ पर सोलर पैनल्स भी मौजूद हैं, गैस सिलेंडर्स भी मौजूद हैं, और इस वक्त हमारी 100 से ज़ायद अफराद पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर, डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम है जो वहाँ पर अद्वियात के साथ मौजूद है और प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप्स के साथ वहाँ पर काम किया जाए। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में रेस्क्यू सेंटर्स कायम किए जाएंगे जहाँ मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 20। वेलकम बैक। कराची पुलिस एक बार फिर अदालत के अहकामात पर अमल दरामद न कर सकी। मुख्तलिफ अजला में एसपी की नशिस्तों पर ताहाल DSPs बराजमान हैं, जबकि सीनियर अफसरान घरों पर तैनाती के मुंतजर हैं। सामो मलिक की रिपोर्ट। अदालती हुक्म के बावजूद कराची पुलिस में पुरानी पॉलिसी बरकरार। DSPs ताहाल SP की कुर्सी पर, सीनियर अफसरान तैनाती के मुंतजर। सिंध हाई कोर्ट के फैसले को 2 माह गुजर जाने के बावजूद शहर के कई अजला में SP की पोस्टिंग पर DSPs ही बराजमान हैं, जबकि सीनियर SSPs अपने घरों पर पोस्टिंग के मुंतजर हैं। लांडी में SDPO फायजा सुढर ताहाल SP लांडी का चार्ज संभाले हुए हैं। शारा फैसल के SDPO अहमद इकबाल मेमन SP गुलशन पर बराजमान हैं, और फैरियर की नईम अहमद चाचड़ के पास SP सदर का इजाफी चार्ज मौजूद है। इसी तरह दरख्शा के DSP इमरान खान SP क्लिफ्टन की कुर्सी पर बरकरार हैं, और मसरूर अहमद जतोई SP मंगूपीर के इजाफी चार्ज आज भी संभाले हुए हैं। दूसरी जानिब सीनियर SSPs घरों पर बैठे तैनाती के इंतजार में हैं, और पुलिस चीफ इन इजाफी चार्जेस को खत्म कराने में नाकाम नजर आते हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि DSPs से SSP का चार्ज जल्द वापस ले लिए जाएंगे, और इस सिलसिले में काम जारी है। उसामा मलिक, सिटी 21। वज़ीर आज़म के अमरीका और गल्फ ममालिक के दौरों के बाद स्टॉक मार्केट मजीद तेज हो गई। बिजली के सर्कुलर डेट पर 18 बैंकों से मुआहिदा भी सरमायाकारों को सरगर्म कर गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4219 पॉइंट्स की तेजी भी रिकॉर्ड की गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। शहबाज की ऊंची परवाज काम कर गई। वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका और खलीजी ममालिक के दौरे के बाद सरमायों का एतमाद भी बहाल। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4219 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरों के बाद बिजली के सर्कुलर डेट पर 18 बैंकों से मुआहिदा भी सरमायाकारों को सरगर्म कर गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.70% इजाफे से पहली बार 1,62,257 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। हुकूमत का 1,225 अरब रुपए के बिजली के सर्कुलर डेट पर अहम मुआहदे ने मार्केट पर मुस्बत किरदार अदा किया। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं, जिसकी बदौलत सरमायाकारों का एतबार भी बहाल हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई पाकिस्तान PM से शहबाज शरीफ साहब से, और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई, तो उसमें होपफुली कि ट्रेड के हवाले से और जियो पॉलिटिकल के हवाले से अच्छी खबरें आ सकती हैं। और उसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट का एक मसला था वो भी मार्केट में इसको वेलकम किया, और तकरीबन आखिरी मराहिल पे है ख़त्म होने के। ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए बहुत हाई रहा, क्योंकि इस पूरे 5 दिनों के वर्किंग डे में अभी तक जो है मार्केट एक पॉइंट भी डाउन नहीं हुई। ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल मार्केट 5000 से ज़्यादा पॉइंट ऊपर हो चुकी है पूरे 5 दिनों में। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,62,422 रही, जबकि इंडेक्स में कम तरीन सतह 1,57,245 रही। एक हफ्ते में 300 अरब रुपए मालियत के 8.35 अरब शेयर्स का लेन देन किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 668 अरब रुपए इजाफे से 19,042 अरब रुपए। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात रंग लाने लगे। रुपया दोबारा तगड़ा, डॉलर की पेशकदमी रुक गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे और ओपन मार्केट में 10 पैसे सस्ता हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट। करेंसी मार्केट में डॉलर की तेज रफ्तारी को ब्रेक लग गया। एक हफ्ते में रुपया तगड़ा हो गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 46 पैसे से कम होकर 281 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 40 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम होकर 1 रुपए 3 पैसे रह गया। एक हफ्ते में यूरो 2 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 332 रुपए 81 पैसे का हो गया।
बरतानी पाउंड 3 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 381 रुपए 70 पैसे पर आ गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 10 पैसे सस्ता होकर 77 रुपए 70 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 77 पैसे पर आ गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 23 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 53 लाख डॉलर बढ़कर 5 अरब 41 करोड़ डॉलर पर आ गए। मुल्की मजमूई ज़खायर में 5 करोड़ 76 लाख डॉलर का इजाफा देखा गया। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 19 अरब 79 करोड़ डॉलर हो गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साल 2025-26 के लिए नए ओहदेदारों को मुंतखब कर लिया। काटी के सदर इकराम राजपूत, सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद और नायब सदर मोहम्मद तलहा करार। काटी के नौमुंतखब सदर इकराम राजपूत कहते हैं कि भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान की रिपोर्ट। काटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 2025-26 के लिए नए ओहदेदारान को मुंतखब कर लिया। इकराम राजपूत सदर, जाहिद हमीद सीनियर नायब सदर और मोहम्मद तलहा नायब सदर मुंतखब। नौ मुंतखब सदर इकराम राजपूत ने बिला मुकाबला इंतखाब पर सरपरस्ते आला काटी एसएम तनवीर का शुक्रिया अदा किया। कहा, ताजरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह, माशी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान के नाम का बोलबाला हो रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान की अमरीकी सदर से अहम मुलाकात के बाद कारोबार की नई राहें भी खुलेंगी। इंडस्ट्री के मसाइल हल करके मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में तेजी से बढ़ सकती है। इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं वो बड़े मुश्किल के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम यहाँ जो है पहले भी बहुत अच्छा काम करती रही है। जिस तरह से इंडिया के साथ जो जंग की है और पूरी दुनिया में जो ये धूम मचाई है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है और हमारी यूनिटी है। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में एक है, पूरी 24 करोड़ आवाम एक है। सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद ने कहा कि काटी कराची का अहम इंडस्ट्रियल जोन है। मुल्क की 10 बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज में से 5 काटी में हैं। हमारा फोकस सनतकारों के मसाइल के हल पर होगा। हमारा ये विजन होगा कि हम किसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करें और लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उस पर सहूलत दें ताकि वो अपना बिजनेस एनहांस कर सकें। और जैसे ही इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो हमारे ऑटोमेटिकली काफ़ी मसले मसाइल, बेरोज़गारी, स्नैचिंग, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद एड्रेस हो जाएंगे। नौ मुंतखब नायब सदर मोहम्मद तलहा बोले, हमारे लीडरशिप ने हमको मुंतखब किया है। हमारा विजन यही है कि यहाँ पे जो कोर इश्यूज़ हैं, ग्राउंड पे जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, गवर्नमेंट के साथ मिलके, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, और जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको पहले ऑन बोर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएं। और जैसा आपको बताया कि काटी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वन ऑफ द लीडिंग एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तान, जिसका अपना इम्पैक्ट है, अपना हुकूमत पे आला सतह पे हमारी आवाज़ को सुना जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। तो हमारा ये होगा कि इन सबको ऑन बोर्ड लेके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। सरमायाकारों का कहना है कि उम्मीद है काटी के 9 मुंतखब ओहदेदारान मसाइल के हल पर फोकस करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अशरफ खान, सिटी 20। निशाद ग्रुप नेक्स्ट जेन ऑटो ने गाड़ियों की मुख्तलिफ ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया। E5 इलेक्ट्रिक गाड़ी मुतारिफ करवा दी गई। जेको J7 हाइब्रिड गाड़ी भी मंजर आम पर आ गई। हेड ऑफ नेटवर्क्स अयाज कहते हैं गाड़ियां 400 से 1200 किलोमीटर की रेंज रखती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल की बचत होगी। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। निशाद ग्रुप की कंपनी नेक्स्ट जेन ऑटो की बड़ी कामयाबी, E5 इलेक्ट्रिक जेको J7 हाइब्रिड गाड़ी भी मंजर आम पर। एक्सपो सेंटर में 2 रोजा व्हीकल नुमाइश का आगाज हो गया। हेड ऑफ नेटवर्क्स अयाज कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल की बचत होगी। E5 जेको J6 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि J7 की रेंज 1200 किलोमीटर तक है, जिसकी बदौलत कराची से लाहौर एक बार चार्ज पर जा सकते हैं। अच्छा, 2 जो है हमारी E5 और जेको J6 जो है वो हमारी प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो कि आपको 400 प्लस किलोमीटर की रेंज देती हैं विद बैटरी साइज। इसी तरह से आने वाले मॉडल्स में से हमारी जेको J7 है। जेको J7 जो है वो PHEV है, जिसमें सुपर हाइब्रिड सिस्टम है जो कि आपको एक फ्यूल टैंक और फुल चार्ज के साथ 1200 प्लस किलोमीटर्स दे रही है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने कराची से सफ़र स्टार्ट किया है और लाहौर तक तकरीबन आप पहुंच जाएंगे।
चेरी भी नेक्स्ट जेन के ब्रांड ओमोडा और जेको की गाड़ियों की तारीफ किए बगैर ना रह सके। टेस्ट ड्राइव की और डिजाइन फीचर्स की भी तारीफ की। द इंटीरियर ऑफ इट, जो बिल्ड क्वालिटीज की मुझे अभी तक देखने को मिली है, द मटेरियल्स यूज्ड इनसाइड, बहुत सटल तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसका इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर डिजाइन किया गया है। इट्स बिन वेरी स्पेसिफिकली डिजाइन की, हर एक छोटी बारीकी जो मुझे फील हो रही है कि गाड़ी में रखी गई है एज अ कंज्यूमर, कॉकपिट से लेके पैसेंजर सीट से लेके ऑल द फीचर्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन द व्हीकल आर रियली गुड। नुमाइश इतवार को भी जारी रहेगी। इवेंट को गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अहम संग मील तस्वुर किया जा रहा है। कैमरामैन अजलान के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 20। इंडस अस्पताल की जानिब से मुकामी होटल में यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया। इवेंट का मकसद शहरियों बिलखुसूस नौजवानों को पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल से आगाह करना था। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मशहूद रिजवी ने कहा कि मसाइल उस वक्त हल होंगे जब उनको अपने मसाइल समझ कर हल करेंगे। दुआ शकील फराचा की रिपोर्ट। मुस्तकबिल के बीमारों को मसाइल से आगाही फराम करने का अज़्म। इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क का अपने नौजवानों के प्लेटफॉर्म इंडस यकीन के तहत सालाना यूथ कॉन्फ्रेंस मीरे कारवां तुम हो का कामयाब इनेकाद किया, जिसमें नौजवान रहनुमाओं, रज़ाकारों, पार्टनर स्कूल्स और माहिरीन ने शिरकत की। इस मौका पर अहम आलमी चैलेंजेस के हवाले से नौजवानों को मुतहरिक करने पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज मशहूद रिजवी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CRD डिपार्टमेंट इंडस अस्पताल के गैर मुकदमी कलमात से हुआ, जिन्होंने नौजवानों के किरदार को तब्दीली का असर मुहरिक करार दिया। इसका मेन मकसद ये है कि बच्चों को इस बात का शऊर दिया जाए और वालिदैन को कि हर मर्ज़ का इलाज दवा और हस्पताल नहीं है और हर मर्ज़ का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को शऊर दिया जाए कि बहुत से मर्ज़ को प्रिवेंशन के ज़रिए रोका जा सकता है, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए बहुत तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ा जा सकता है। जैसे आपको पता है कि इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क इस वक्त पूरे मुल्क में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा है। इसके बाद क्लाइमेट क्राइसिस के दौर में मसनूई जहानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर एक दिलचस्प पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी और माहौलियाती जिम्मेदारी के तवज़ुन पर रोशनी डाली गई। अवार्ड याफ्ता फिल्म साज जवाद शरीफ ने क्लाइमेट चेंज के लिए स्टोरी टेलिंग पर इंटरेक्टिव सेशन लिया, जिसमें नौजवानों को तख्लीकी सलाहियतों के जरिए मौसर पैगाम रसाई पर उभारा गया। सदर इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने कहा कि पाकिस्तान और इसके लोगों का ख्याल रखना हमारी और हमारे अदारे की भी जिम्मेदारी है। तो हम बहुत सारे मीर कारवां चाहिए हैं इस मुल्क में, जो जितने मसाइल हैं उसके लिए बहुत सारे मीर कारवां चाहिए, और हम समझते हैं कि नौजवान ही ये लीडरशिप आ सकती है अगर उनका इस प्रिमिटिव टाइम में, जब वो के अपनी प्रोफेशनल लाइफ में घुसने से पहले अगर उनके जहनों को तब्दील कर दिया जाए तो हम अपनी जिंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क की क़ियादत ने कॉन्फ्रेंस में इस बात का इरादा किया कि नौजवान ही असल मशले बरादर हैं, जो पाकिस्तान और दुनिया को एक सेहतमंद और पायदार मुस्तकबिल की जानिब ले जा सकते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ दुआ शकील फराचा, सिटी 20।